Today in this video, what are we going to continue? That is, for class 12th CBSE, we are going to continue the book Flamingo. Okay, and as you guys know that there are two books we have in class 12 CBSE course. That is, the first one is Flamingo and the another one is the Stars. Okay, and as you guys can see on the screen, I have given you both the books names and pictures, so you guys can just go to the market and you can buy that book if you don't have. Okay, so and if you guys have that book, then please open it up and see what I'm going to teach you here today. Fine. So the chapter is the number one chapter, the first chapter we are going to discuss today in this video, and the name of the chapter is The Last Lesson. Okay, the last lesson we are going to discuss, and according to CBSE for this year 2020 to 21 session, we have got 30% of the course reduced. Okay, so that thing I'm definitely going to tell you soon in the next video, but for this video we are just starting the chapter, and in the next video I'll separately upload a video for that, so that you guys can see what else is not there in our course this year. Okay, how many chapters we are not supposed to study anymore. So let's start with the chapter 1, The Last Lesson. Okay, and the chapter is written by Alphonse Daudet. Okay, he is the writer of this chapter, and he was born in 1840 and he died in 1897. Okay, so that was his birth date, you can, and death date. So next is, he was a French novelist and a story writer. क्या थे वो? French novelist थे and a story writer also. Fine. And he actually, like, what do we know about his life? So his life was like, he was a school teacher. Okay, he was teaching in a school, and then suddenly, I don't know what happened, man, but he just quit his job and then he started writing, and then he became famous in it, and now we are studying his chapter in our course. That's a big achievement, man. I'll try myself too, you know. So next is, we have the chapter characters over here written. Okay, that is French. French is a little boy in the story. We are going to discuss about him. Okay, and actually the story is told by this boy only. Okay, the boy is telling us the whole story. So, and the next one is M. Hamel. Who is M. Hamel? M. Hamel is a teacher in this chapter. Alsace and Lorraine, these are two French countries, places. Okay, Alsace and Lorraine, it's a place. And then we have blacksmith, washer, and then bulletin board has a very big meaning in the chapter. So that's what I'm going to tell you during the story. Okay, next is beautiful green coat. It's written over here, man. What does it mean? We are going to use it in our story, and you guys will definitely remember it. Fine. And after that, frilled shirt, little back, silk cap, all embroidered. Frilled shirt, maybe I hope आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी होगी. फाइन. हैरी पॉटर में जो रॉन वीजली होता है, यू नो, रॉन वीजली को एक बॉल पार्टी में जाना होता है उन लोगों को, एंड एट दैट टाइम रॉन वीजली की मॉम जो उसके लिए एक बढ़िया सा शर्ट भेजती है, यू नो, उस शर्ट में बहुत सारी फ्रिल्स होती हैं यहाँ पे, बहुत वाइट कलर की. और या फिर आपने पुराने टाइप के जो वो होते थे, क्या, जज, माय लॉर्ड, उनको देखा होगा, उनकी फ्रिल वाली शर्ट होती है. फाइन. सो दैट इज द फ्रिल्ड शर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. फाइन. अगर आपने नहीं देखी हैरी पॉटर, यू कैन गो एंड वॉच इट, but after your exams, not before that. Fine. So let's start with the story. Now I'm going to summarize the chapter. After that, you guys can go to your book and then read the chapter carefully, and then you'll have all the answers given. Fine. So let's start with the story. How does it start? It starts with the boy, little boy. Fine. The boy is French. What happens? जो हमारा French है, उसके साथ क्या होता है? He gets late. वो लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, एज इट हैपन्स टू एवरी वन. यू नो, राइट नाउ इट्स विंटर, एंड इन विंटर nobody feels like going out of their quilts at all. Neither do I, man. Seriously, who goes out, man? Seriously, I can stay in bed for the whole day. I hope you do the same. Okay, so French got late for the school early in the morning, and then he was in rush. वो बहुत ही जल्दी में था. He was just like कि यार मैं जल्दी से बस स्कूल पहुंच जाऊं, and then he started running from his home, and then as he came out, he thought about it that, man, I can't go to school at all. Why? Because his teacher one day ago, he gave him a topic to learn, that was participles. Okay,
the teacher gave him a topic in English grammar that was participles, that you need to learn participles by heart or else tomorrow I'm definitely going to kick you out of this class, or else I'm going to use my ruler on you. Fine. So that's why French was kind of scared, man. He was so scared, man. I can't bear that ruler anymore. वो बहुत ही डरा हुआ था. वो सोच रहा था सर जाऊंगा तो पक्का मारेंगे आज तो, man, I'm going to die seriously. So that's why he was afraid and he did not want to go to school, and on the contrary वो बेचारा लेट भी हो गया था, So that's why he thought कि यार चलो आज स्कूल छोड़ ही देते हैं. आज स्कूल छोड़ करके मैं कहाँ चला जाता हूँ? I'll go to the park, I'll go to the woods, I'll go to the drill those Persian soldiers were doing, Persian soldiers were drilling that left, right, left, that kind of a drilling they were doing. So he thought कि यार चलो वहाँ पे चलते हैं, आज जंगल में चलते हैं. फिर वो सोचता है कि यार चलो स्विंग पे चलते हैं, झूला झूलने चलते हैं, ठीक है. फिर वो सोचता है कि यार चलो I'll go to the jungle and I'll see all the birds over there, okay, or I'll see squirrels over there playing on the tree and all that kind of things which can attract any of the kid. He thought of doing so. Fine. So, but somehow he managed himself, and then he thought, no man, I'm not going anywhere, I'll go to school directly. And then he starts running and जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है उसके अंदर लिटिल फ्रेंच जो है बिल्कुल सलमान खान वाली स्टाइल में बिल्कुल दौड़ रहा है जोर जोर से, ठीक है. एंड देन ही रीचेस टू द सर्कल. वी हैव अ सर्कल, ठीक है. सबके लाइक आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी डेफिनेटली एक सर्कल होगा जिसमें से 1 2 3 4 वेज आर कमिंग टू द मेन प्लेस. सो दैट इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेस यू कैन से. एंड एज अर्लियर टाइम्स, जैसे कि पहले की समय की हम बात करें, सो उस समय पर क्या होता था? उस समय पर न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे, आपके सेल फोन्स नहीं होते थे जिसके अंदर न्यूज़पेपर हम न्यूज़ हम पढ़ते हैं. सो सेल फोन्स वर नॉट देयर. सो दैट्स व्हाई पीपल यूज टू यूज व्हाट? बुलेटिन बोर्ड्स. क्या यूज़ करते थे? बुलेटिन बोर्ड्स. इसी तरीके का एक बोर्ड होता था जैसे कि आपके स्कूल्स वगैरह में भी यूज़ किए जाते होंगे नोटिस वगैरह के लिए. सो दैट इज़ बुलेटिन बोर्ड, आप सब लोग जानते हैं. फाइन. सो बुलेटिन बोर्ड को वहाँ पर जो उनके सर्कल पर चौराहे पर जो एक बुलेटिन बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड पे कुछ न्यूज़ लिखी हुई थी. एंड जो हमारा लिटिल फ्रेंड्स है वो दौड़ता दौड़ता स्कूल की तरफ जा रहा है. उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा था कि वो पर्शियन सोल्जर जो ड्रिल कर रहे थे. उसको लग रहा था यार ये ज़्यादा अच्छा है, मैं तो उनको देख लेता हूँ. फिर उसको लग रहा था यार जंगल में चलते हैं, जानवर को देख लेते हैं. फिर बोलता है नहीं यार. फिर उसको लगता है झूला झूलने चलते हैं, फिर उसको भी मना कर देता है खुद से ही. एंड देन दिस इज हाउ ऑल द टेम्पटिंग थिंग्स ही सेज नो. एंड देन ही इज मूविंग टूवर्ड्स हिज स्कूल. वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है दौड़ता हुआ. एंड देन व्हेन ही अराइव्स एट द सर्कल एंड देयर इज अ बुलेटिन बोर्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग देयर, इट्स अ बिग क्राउड. एंड देन ही डज नॉट स्टॉप एंड ही थिंक्स हिमसेल्फ, माय गॉड मैन, व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, what's the matter again? And he sees, man, there is something, but I don't care at all now because I'm getting late to the school, and if I'll not reach on time, my teacher is going to kick me. Fine. So that's why he thought कि लो चलो यार क्लास ही चलते हैं, don't worry. वो दौड़ता रहता है. And then at that place there are a few people standing, just like I said, blacksmith and washer with their apprentice. Apprentice क्या होता है? There will be a word in the chapter. Apprentice means someone who's working, who's like actually learning things, okay. जो learner होते हैं, freshers we say apprentice. So blacksmith and washer वहाँ पे खड़े थे और वो दोनों खड़े होकर के उस न्यूज़ को देख रहे थे. उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे. तो वहाँ पे blacksmith मुड़ते हैं और मुड़ करके कहता है, अरे बेटा आराम से जाओ, little friends, you have a lot of time my dear friend, you will reach to school on time. तुम समय पर पहुँच जाओगे. वो उससे ऐसा कहते हैं. उसको लगता है कि यार मजाक बना रहे मेरा, ठीक है बेटा बताऊंगा बाद में. And then he thinks that they are making fun of him, okay, but somehow he just ignores them, and then he is running again towards his school. And then when he reaches out in the garden of the school, all out of his breath, मतलब कि पूरा हाफते हुए वो आ गया स्कूल. And he reaches there and then he thinks, my god man, what's so strange? Why? Because every day like आप लोग स्कूल जाते हैं, so just like that when every time like you reach school and you listen to a lot of bustle, बहुत सारा हसल बसल होता है वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, कोई ब्रेंच को गिरा रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है. So it's like every kind of sound you can hear over there. So that's what actually friends thought कि यार ऐसा ही कुछ साउंड सुनाई देगा. लेकिन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड देन उस दिन सब कुछ बहुत ही शांत होता है, बहुत ही साइलेंट,
ओ माय गॉड, उसको टेंशन आ जाती है, भाई क्या हो गया, क्लास चालू तो नहीं हो गई, मैं ज़्यादा ही लेट हो गया. एंड देन ही थिंक्स एंड देन ही गोज टू द रूम ऑफ द क्लासरूम बिकॉज देयर क्लासरूम वाज लाइक कि दिस इज अ रूम एंड ऑल हियर ही इज हैविंग ऑल द ग्राउंड, ऑल द ग्रास एंड एवरीथिंग वाज देयर. Okay, so just like his classroom was there in the middle of the garden, he just went to the garden and then he tried to see everyone from the window. जो उस रूम की जो विंडो थी उसमें से वो कोशिश करता है कि यार देखूं कौन कौन है अंदर. एंड देन व्हेन ही सीज दैट एवरीबडी सीटेड डाउन, सब लोग बैठ चुके थे. उसके जो टीचर थे वो आगे खड़े थे क्लासरूम में, अपना वो डंडा लेकर के ऐसे यूँ करके, रूलर ऐसे यूँ पकड़ के उन खड़े होने की उनकी आदत थी. एंड देन ही वाज स्टैंडिंग देयर लाइक दिस एंड देन ही सो माय गॉड मैन, आई एम गोइंग डाई रियली, because my teacher, he's already so, you know, like his teacher was so rude behavior kind of person, you can say. So that's why he used to like beat them if they do not do what he says to do them. Okay, so that's what he was scared of कि यार भाई अब तो गए, अब तो मारेंगे सर, बहुत ही मारेंगे भाई, ठीक है. बट somehow he thought कि यार अब आ तो गए हैं तो क्लास में अंदर तो जाना पड़ेगा. एंड देन ही लाइक सारा करेज इकट्ठा करता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द क्लासरूम finally, and then he enters to the classroom opening both the doors. और वो जैसे ही देखता है तो उसके सर उसको देख लेते हैं. Oh my dear friend, we were about to begin without you, you know, like तुम्हारे बिना ही हम लोग अभी स्टार्ट कर देते. So वो कहता है हाँ सर बिल्कुल. एंड देन उसके सर जो होते हैं वो बहुत ही डर जाता है कि यार अब तो देख लिया इन्होंने, अब तो मारेंगे. डेली तो वो क्या करता था, डेली वो विंडो में से कूद करके, सारे बच्चे मस्ती करते रहते थे, वो विंडो से कूद करके अंदर चला जाता था, किसी को पता नहीं पड़ता था. आज सब लोग शांत थे, सब चुप था. एंड देन वो जा करके बैठ जाता है. उसके सर बोलते हैं बैठो जाओ. उसको लगता है मारेंगे, नहीं मारते, तो जा करके वो बैठ जाता है. बैठने के बाद क्या होता है, ही सिट्स देयर एंड देन देयर टीचर, ओ माय गॉड, उसको शॉक लग गया देखते, ओ ये क्या हो गया, क्या हो गया. उसके जो सर थे उसने जब अपने सर को देखा तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था. ओके, फ्रिल्ड शर्ट थी, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, ऐसे कैप थी, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी पूरी. एंड एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है, कढ़ाई हिंदी में, फाइन. सो इट्स काइंड ऑफ आर्ट वी डू विद द थ्रेड. ओके, सो निडल एंड थ्रेड. सो दैट इज़ कि वो कैप उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे. वो कपड़े जो कि मोस्टली वो कब पहना करते थे, या तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो और कोई बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आ रहा हो. सो इन दैट केस ओनली ही यूज्ड टू वेयर those clothes, but that day he was wearing them, and then he thought, my god, what's so strange now, why is he wearing these dress. He was so tensed about it. And then at that time the teacher said, today we are doing the last lesson of your course. And he was like, what? And teacher was, आज जो है हम लोग इसका लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं. कौन सी लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का, FRENCH, फ्रेंच लैंग्वेज का वो क्या पढ़ रहे थे, लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, लास्ट लेसन पढ़ रहे थे. क्यों, क्योंकि वहाँ पे बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब जो है यहाँ पर एल्सेक एंड लॉरेन जो प्लेस हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. क्यों, क्योंकि जो दूसरे देश था उसने उनको लड़ाई में हरा दिया था. एंड दैट्स वाई अनदर कंट्री इज गोइंग टू ओवरकम दैम. That's why they will not learn French and they will only learn German from tomorrow onwards. तो सर कहते हैं कि भाई कल से आपको जर्मन सीखनी है, आज लास्ट लेसन है आपका फ्रेंच का. Oh my God, French was like, क्या सर क्या कह रहे हो आप. He was like so shocked man. He was like, ये कैसे हो गया. And then he realized, my God man, this is not good. This was not supposed to happen at all. और उस दिन उसको रियलाइज होता है कि यार मेरी लैंग्वेज कितनी अच्छी थी मेरे लिए, फाइन. एंड देन उसके जो सर होते हैं वो बोलते हैं कि चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं. लेकिन उसको बेचारे को टेंशन हो गई. अब उसके सर पढ़ाते हैं भाई, वो एक चैप्टर चालू करते हैं, एक सब्जेक्ट का वो पढ़ लेते हैं वो, फिर दूसरा चैप्टर चालू करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का वो पढ़ लेते हैं वो. एंड देन जस्ट लाइक दिस दे गो ऑन एंड गो ऑन. और जब वो क्लास में देखता है, इसी दौरान जब वो क्लास में देखता है तो वो देखता है कि पीछे जो गांव के और भी जो बहुत सारे लोग थे, रिस्पेक्टेड पीपल थे, कुछ बूढ़े लोग थे, ठीक है, वो सब आकर के क्लास में पीछे बैठे हुए थे. ठीक है, प्रिमर नाम से एक वर्ड आएगा चैप्टर के अंदर, प्रिमर, दैट मीन्स बुक, ओल्ड बुक, फाइन. सो दैट इज़ कि वहाँ पे कुछ जो लोग थे गाँव वाले, वो लोग आए थे, वो लोग बैठे थे, कुछ लोग अपनी प्रिमर्स लेके आए थे, पुरानी बुक्स जो थी उनके, जब वो पढ़ने आया करते होंगे मे बी. बिकॉज एम हैमल, वेयर इज एम हैमल, या हियर इज, ही वॉज टीचिंग देयर फॉर 40 ईयर्स. कितने ईयर से पढ़ा रहे थे वो, 40 ईयर्स से, 40 सालों से जो एम हैमल थे वो वहाँ पर काम कर रहे थे. सो दैट्स वाई ऑल द पीपल दोज हु वर देयर, दे केम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टेड एम हैमल. ओके, तो वो लोग किस लिए आए थे कि एम हैमल को रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे. उसको समझ गया कि यार अच्छा इसलिए बैठे हैं.
सो देन अब उसको जब वो बैठ के पढ़ रहा था उस दिन, तो उसको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, एंड ही वाज लाइक कि यार सही है, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड ही वाज थिंकिंग दैट मैन डिड आई नॉट स्टडी वेल और ही नेवर टॉट वेल। अब वो सोच रहा था यार कभी मैंने ढंग से नहीं पढ़ा या इन्होंने नहीं पढ़ाया, एंड ही वाज सो टेंस्ड अबाउट इट। ओके, एंड ही वाज थिंकिंग यार ये तो लास्ट ही चैप्टर होने वाला है, मतलब आज लास्ट पढ़ रहे हैं हम और मेरे को तो समझ में भी आ रहा है ये तो। एंड देन अब आता है भाई पार्टिसिपल का नंबर, जो हमने सीखा था स्टार्टिंग में। पार्टिसिपल के बारे में टीचर जो होते हैं वो खड़ा करते हैं, चलो भाई पार्टिसिपल के रूल्स पूछेंगे। सो फर्स्ट टाइम सबसे पहला नंबर ही आ जाता है फ्रेंच का। जैसे कि आप लोगों की क्लास में जब आपके टीचर्स कभी पूछते होंगे तो आप लोग यही कोशिश करते होंगे कि यूं करके मैं छुप जाऊं थोड़ा सा, मेरा नंबर ना आए, और अगर पीछे बैठे तो बैग और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन, छुप जाते हैं पासवर्ड के। सो जस्ट लाइक दैट ही थॉट, बट और उसने मन में सोच लिया था आज सर पूछेंगे और मैं एकदम बढ़िया से आंसर करूंगा। सोचने से थोड़ी ना होता है, आंसर आना भी तो चाहिए। उसको आता ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था उसने। सो दैट्स वाई द टीचर मेड हिम स्टूड अप, एंड देन ही स्टूड एंड देन ही सेड, उन्होंने पूछा बताओ पार्टिसिपल के रूल, एंड देन ही थॉट, उसने तो सोचा था कि सही बताऊंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड देन ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑन द फर्स्ट लाइन ही जस्ट मेस्ड अप, पहले ही लाइन के पहले वर्ड में वो मैस कर जाता है। एंड देन जो टीचर होते हैं वो फिर उसको डांटते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माइन टू, it's not you that who goes to the who goes on the vacation, it was me, whenever I had to go to the vacation I just gave you वेके, लाइक जब मुझे जाना होता था छुट्टियों पे तो मैं तुम्हें भी छुट्टी देता था, यू नो। एंड ही सेज लाइक व्हेन आई हैड टू गो फॉर द फिशिंग आई यूज्ड टू गिव यू हॉलीडे, एंड व्हेन आई हैड टू गो फॉर द फिशिंग यू यूज्ड टू हुक माय फिशिंग हुक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, और कि मैंने तुम लोगों से अपने गार्डन में पानी भी दिलवाया कई बार, और ऐसे करके बहुत सारी बातें वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। एंड देन ही एड्स ऑन कि भाई इट्स नॉट ओनली यू एंड नॉट ओनली मी बट योर पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो तुम्हें कहाँ पे मील्स पे काम करने भेजना चाहते हैं, कारखानों में, कि उससे थोड़ा पैसा आएगा, एंड दे जस्ट वरी अबाउट द मनी ओनली, ओके, दे डू नॉट केयर अबाउट योर फ्यूचर एंड योर स्टडीज एट ऑल। तो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसे करके वो सुनाने लगते हैं। उसके बाद वो बेचारा, उसको टेंशन आ जाती है, यार ये तो सही बात है, बहुत बुरा लग रहा है। एंड देन उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उनको कॉपी, वो सारी बात हो जाती है, फिर वो उनको कॉपीज़ देते हैं लिखने के लिए, एंड देन दे राइट समथिंग इन इट। एंड ही सेज, फ्रेंच कहता है कि अब उस दिन सब लोग इतने सीरियस थे, सब लोग इतने चुप से लिख रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ, जैसे कि आप जो पेपर देने जाते हैं एग्जाम, तो वहाँ पे सिर्फ पेन के चलने की आवाज़ आ रही होती है बहुत सारी। सो दैट इज़ व्हाट ही सेज, दैट वी कुड ओनली हियर द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ऑन द पेपर, okay, nobody else was talking at all. And even when the little fly just came into the room, and the littlest one who was sitting in the room, he did not even pay attention to that fly, and he was just writing and writing and writing. So that's how the serious matter went on, ठीक है, इतना सीरियस ये मैटर हो गया था। सो दैट इज़ कि अब उसको लगता है कि यार ये मैंने बहुत बुरा किया है, काश मैं पढ़ लेता, काश सब हो जाता। एंड देन जो टीचर होते हैं वो लोग उनको, फिर वो उनसे कुछ बात करने वाले होते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं, एंड देन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं फाइन इन दी एंड। और उसी दौरान, उसी से पहले की बात है कि उसको लगता है कि वो सुनता है ऊपर वाले रूम में जो उनकी जो सिस्टर होती है वो बॉक्सेस जो होती है उनको शिफ्ट कर रही होती है, पैकिंग कर रहे होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड देन इन दी एंड क्या होता है चैप्टर में, फिर चैप्टर में लास्ट में जो MML है वो उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि देखिए ये जो हमारी लैंग्वेज है ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है, ही इज़ सो पैट्रियोटिक, लाइक अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं वो। एंड ही गोज़ इनटू द नॉस्टैल्जिया, वो कहते हैं कि मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैं इस जगह को छोड़ के जाने वाला हूँ। एंड देन वो कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड यू ऑल आर supposed to save this language. And he says that please save this language between you, so that if you have this language on you, you will have the key to the freedom. अगर आपके पास ये लैंग्वेज है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम की चाबी है। मतलब कि जैसे कि वी कैन से टेक एन एग्जाम्पल, लाइक गांधी जी थे, फाइन। सो गांधी जी ने इंडिया के फ्रीडम के लिए क्या किया, अगर हम सब लोग मिलकर के उसी समय पर इंग्लिश को अडॉप्ट कर लेते पूरी तरीके से, क्या हम अंग्रेजों से आज़ाद हो पाते? नहीं। सो दैट इज़ व्हाट ही सेज कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं तो आपके पास एक चांस है कि किसी दिन आप फ्रीडम पा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट ही सेज कि दैट यू ऑल नीड टू गार्ड दिस लैंग्वेज अमंग ऑल ऑफ यू। आपको इस लैंग्वेज को बचा के रखना है। हालांकि आप कह तो नहीं सकते हो कि आप एक फ्रेंच मैन हो, क्यों? क्योंकि आपको ना तो फ्रेंच लिखना आता है ना ही बोलना आता है। सो ऑल द पीपल दोज आर कमिंग फ्रॉम द अनदर कंट्री, दे कैन से दैट यू आर नॉट अ फ्रेंच मैन एट ऑल, बिकॉज नीदर यू नो हाउ टू स्पीक नॉर टू राइट।
ठीक है, ना तो आपको बोलना आता है ना ही लिखना आता है. सो दैट्स व्हाट ही सेज. एंड देन उसके बाद उनकी जो मन था वो भर आता है, लाइक he was about to cry, so that's why he stopped talking. He wanted to talk but he couldn't, his throat choked, and then he just put up a chalk. उन्होंने एक चौक उठाई और उठा करके वहाँ पे बोर्ड पे ऐसे करके बड़ा बड़ा लिख दिया, विवा लादा फ्रेंड्स, विवा लादा फ्रेंड्स. इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. एंड देन उन्होंने सबकी तरफ एक्सप्रेशन कर दिया, ओके यू कैन गो, द क्लास इज ओवर. और ऐसे करके फिर जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो फ्रॉम दिस चैप्टर दैट every time, every time we say कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे, अरे बहुत टाइम में भी तो सीख लेंगे. So this is the thing we are not supposed to do. This chapter tells us कि क्या पता कल क्या हो जाए. Okay, we never know that what will happen tomorrow, what that another morning of tomorrow is going to have for us. So that's why if you want to do something, then do it today only. Never throw anything for tomorrow, just do it today. And as this chapter will be in the paper, maybe they can ask you, describe this chapter in your own words. So make sure कि जब आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चैप्टर के साथ साथ अपने कुछ आइडियाज भी उस आंसर के अंदर लिखें in your own words. Like I just told you that if you have to do something, do it today only. Do not leave it on tomorrow because you don't know what will happen tomorrow. So that is how you can just use your brain. You can find some more ideas from outside in the world, and then you can connect them with this chapter, and then you can write the answers, and this will get you some good marks. Fine, thank you so much, enjoy this, and I will add some word meanings also with this video in the end, so that you guys can just pause the videos and then you can take the screenshot of the word meanings and question answers, and then you can note them down in your book, and then you can read the chapter. And if you have any problem, then please comment me, share your problems with me on an email, or you can text or whatever. Fine. And if you like the video, then please hit the like button, share this video if it's useful for you with your friends and some more students. Those are in need, those are in 12 CBSE right now. Okay, so just suggest them if it's useful for you. Thank you so much, enjoy this, and I'll see you guys in the next chapter. Bye bye.